Hello everyone. We will going to discuss about the RMS exam 2021. Okay. Today we will discuss about the exams science section. Okay. Let's move on to the questions first. That is the first question is the hearing range of human ear. Okay. This question is very easy and this question's answer is audible range की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. There are three categories in which we have divided the human actually the sound. Okay, that is first is your infra sounds. Okay, that is infrasound less than 20 hertz. Okay, second one is audible range. Okay, audible range like 20 hertz to 20,000 hertz, and third one is your ultrasound. Okay, so let's discuss about the first option of this question is A option. Okay, next question is the pitch of a sound depends upon the frequency. Okay, this is a very important property of a sound, that is frequency. So answer is frequency. Okay, next question, uh, that is next question is third question. The sound propagates maximum in gas, solids, and liquids. Okay, so option B is the correct. Option C is the correct answer. Actually, the order is a little bit uh, changed. Okay, so solid is the correct answer. Solid has the maximum number of particles, and the particles are actually responsible for the vibrations, and it needs air to propagate. Sound needs air to propagate because sound needs a medium to travel. Okay. Okay. You can see that there is a two question from a sound section, sound chapter. Okay. The rate of change of displacement is called as velocity. Okay. Fourth question का answer जो है that is velocity. Okay. Rate of change of displacement. Okay. It is a vector quantity, velocity, and you all know about the two types of quantity, scalars and vector. Okay. So velocity is the correct answer for this question. And the fifth question is your unit of pressure, that is Pascal. Newton's a force, Newton for force, dyne is for the energy, joule is again for the energy. Okay. Next question, that is sixth question. Uh, Sixth question is the upward force exerted by the liquid displaced by the body when it is placed inside the liquid is called as Bion force. Okay. Bion force is a force that is exerted by the liquid. ठीक है, जो फ्लूइड है वो आप हमारी तरफ जो है प्रेशर लगाता है, that is called as force of buoyancy property, that is called as Bion force. ठीक है. Next one is seventh question. uh, Next question is seven. Light air is a unit of. Okay, don't let it be that light is light. Then you thought about that it is a unit of light, yeah, for something related to light. Not. This is the distance for the light air is a unit for the distance, and actually it is used to measure for the. This unit is actually used for the large distances. Okay. Okay. Again, let's move on to the next question. For that, eighth question. Okay. So eighth question is light travels at the fastest speed in glass, water, hydrogen, vacuum. Okay, unlike sound, light doesn't need any kind of medium to propagate. Okay, so and the speed of the light is fastest in the vacuum because there is no type intrinsic है. अगर light के case में अगर आप बात करते हैं, there if उसके propagation में कोई problem आता है, ठीक है, कोई भी चीज अगर hindrance होती है, तो diffraction, refraction, reflection, these are all the processes that actually are responsible for the light. ठीक है. Next question we should move on to solar eclipse that will take place when okay the sun is between the moon and the earth is between the moon and the earth, the moon is between the sun and the earth. Okay, so C option is the correct one. Okay, the moon is between the sun and the earth, and the moon actually casts its shadow on the earth. Next question is 10th question. 10th question is if the door of a refrigerator we can say that fridge in common languages fridge are left open for a few hours then the room temperature will ठीक है. पहली बार देखने पे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर शुड बी डिक्रीज, मतलब रूम टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, तो फिर हमें एसी लेने की क्या जरूरत है, देन व्हाई वी नीड टू टेक एनी एयर कंडीशनर. ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस क्वेश्चन एक्चुअली सोल्यूशन जो है वो बी ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, द रूम विल बिकम द हॉट. ठीक है. नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन.
का आंसर देखिए, इफ अ रॉक इज brought from the surface of the moon to the earth, ठीक है। देखिए, this here some questions, most of the questions are taken from the condition, ठीक है। conditions are given so that to know the basic knowledge of a student, ठीक है। Here someone go to the moon, and rock is brought from that surface of the moon to the earth, ठीक है। then what will happen to its, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट्स मास विल चेंज, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरीवेयर, ध्यान रखिएगा, मास ऑलवेज कांस्टेंट, वेट चेंजेस, वेट एक्चुअली चेंजेस, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मास और वेट का क्या मतलब है, देखिए, वेट वी कैन से फोर्स, ठीक है, फोर्स होता है आपका m इंटू ए, ठीक है। एक्चुअली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जो सारे के सारे जो है, वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन आवर अर्थ, ठीक है। तो वो फोर्स को ही हम वेट कहते हैं, एंड फोर्स दिस रिस्पेक्ट टू दैट mg, मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मून, ठीक है, तो मून के पास ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, बट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 6 times लेस देन योर अर्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, बाय ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, द आंसर शुड बी its weight will change, not its mass. Mass is always constant, important है, very very important है, 9th क्लास में भी important है आप लोगों के लिए, 11th में भी important है, जब जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे तब भी important है दिस फैक्ट, ठीक है। देखिए, 11th के बाद 12th देखिए, द एटमॉस्फेयर, इसके ऑप्शंस बेटा थोड़े से तो क्या इसके, अच्छा वो आप ओवरलैप हो रहे हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस, बट वी डोंट फील इट, बिकॉज रीजन क्या है, एक्चुअली एटमॉस्फेयर इज क्रिएट एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, बट जो हमारे ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है, ठीक है, इट एक्सर्ट pressure slightly more than the atmosphere, ठीक है, so that we don't feel the pressure, ठीक है, on us, ठीक है। इसका एग्जांपल जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तब हम लोग बताएंगे आपको, जब हम लोग तो जब हम लोग हाइट पे जाते हैं या क्या होता है वो सब चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ओवरलैप हो गया, बट इतना समझ लीजिए, और ब्लड, जो ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी जिसे कहा जाता है, सिस्टोलिक और ये सब चीजें, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो है, ब्लड जो है वो स्लाइटली मोर प्रेशर क्रिएट करता है ऑन देन योर एटमॉस्फेयर। 13th, a man is standing on a boat in a still water, still water is रुके हुए पानी को कहते हैं, still in a constant that remains at rest जो है, ठीक है। it walk towards the shore, ठीक है, the boat, ठीक है, still water है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जहां पर बोट जिस डायरेक्शन में जाएगी, जहां फोर्स लगा वो जाएगी, ठीक है, बट यहाँ रेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मूव अवे फ्रॉम द शोर, टूवर्ड्स, नो, मूव अवे फ्रॉम द शोर होगा, रिमेन स्टेशनरी, सिंक, डूबेगी नहीं, एक जगह नहीं रहेगी, आगे की तरफ नहीं जाएगी, ये हमेशा अवे की तरफ जाएगी। रीजन, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, each and every action has the equal and opposite reaction, this is the Newton's third law, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत डिटेल में इसके टॉपिक को करेंगे तब हम लोग समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज a piece of ice is floating in a beaker containing water, ठीक है, when the whole of the ice melt, ठीक है, what will happen to the water level, ठीक है, the level of water come down, ठीक है, नहीं, देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, this is your, the level of the water will remain same, ठीक है। रीजन ये है बेटा, यहाँ पर अब इतना ही बता सकते हैं, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकती मैं, ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली डिस्कसिंग द आंसर की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन दैट इज वॉल्यूम ऑफ द आइस, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, दैट्स व्हाई द लेवल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द 15th। A man inside an artificial satellite feels weightlessness because the force of attraction due to Earth is zero. ठीक है, actually when we talk about the artificial satellite, there are two types of satellites, natural and artificial, ठीक है। natural satellites like moon, ठीक है, वहां पे हम जाएंगे तो हम लोगों को स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है, वो एक्चुअली हम लोगों को प्रिपरेशन करे, पर मून थोड़ा ना प्रिपरेशन करे। बट when we talk about the artificial satellite, then satellites are designated to the space, मतलब उनका तो भाई स्पेस में जाना है, स्पेस में हम लोगों को पता है देयर इज नो ग्रेविटी, मतलब देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी अगर जीरो होगी तो
फोर्स पे वेट जो है वो जीरो होगा, वेट जीरो है तो वी विल फील लाइक अ वेटलेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, ठीक है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय जेनरिक प्रॉपर्टी, ठीक है। वेव्स हैव सम प्रॉपर्टीज, अगर बात करते हैं वेव्स की, ठीक है। वेव्स हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका जो 16th का आंसर है, ठीक है, दैट इज योर 16th का आंसर जो होगा आपका, दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है। 17th का देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट एंड अ लाइट ऑब्जेक्ट are allowed to fall from a certain height in absence of air, ठीक है। तो heavy object reach the ground later than the lighter object, heavy object reaches the ground later than the heavier object, both heavy and reaches, देखिए करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर के जब एयर नहीं होगी, ठीक है, तो ये बेटा इसको भी एक्सप्लेन पूरा डिटेल में ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब समझ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 17 के बाद 18, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, देखिए इतना बता सकते हैं, फ्रिक्शन जो इजी थिंग, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस, ठीक है। सरफेस जैसी होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैसा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरफेस का, सरफेस अगर स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर बहुत कम लगेगा, रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, इंक्लिनेशन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, एंड मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सरफेस पे होगा, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th के बाद 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर आउट ऑफ दीज, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, हाँ जी, दैट इज नायलॉन, नायलॉन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इस फाइबर वाले क्वेश्चन टॉपिक पे आपके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, materials having qualities of both metals and non-metals are considered as metalloids, ठीक है। ओके, 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, ठीक है, दैट इज गन पाउडर, ठीक है। याद रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, दीज आर फॉर यूज फॉर दिस एक्सप्लोसिव। दिवाली आने वाली है, ठीक है, पटाखे फोड़ने के बाद जो स्मेल आती है, जो एक्चुअली फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल, लोगों को स्मेल लगती है, मुझे अच्छी लगती है वो खुशबू, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, सम मतलब उनकी क्वांटिटी कम है, ठीक है। आगे देखिए 22 का आंसर जो है, 22 का, इन विच जोन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, दैट इज योर ल्यूमिनस जोन। दिस क्वेश्चन इज शॉर्टली थोड़ा सा कम है, इसमें होना चाहिए था इन फ्लेम, इन द फ्लेम इन विच जोन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग 22 के बाद, 22 के बाद हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। ठीक है 23, मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑलवेज, ठीक है। अब कुछ मेटल्स हैं जो नहीं करते हैं ऐसा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो है, ठीक है, दैट इज योर कॉपर, कॉपर इज इट आंसर, ठीक है, दैट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चले 24th का आंसर बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है। जो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस पाइप्स, भाई पाइप से जाना है, ठीक है। इनकरेक्ट है ये वाली बस स्टेटमेंट। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट इट कैन बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन डायरेक्टली इन बर्निंग होम्स, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर, ठीक है, under a high pressure uh, as a compressed natural gas such as CNG. It is correct, ठीक है। Because last option natural gas cannot be used for power generation, ये भी wrong है, two types में use होती है, ठीक है, two methods हैं उसके as a power generation में use करने के लिए। 25th, a person catches fire on clothes, the best way to extinguish the fire। देखिए ये बचपन से सुनते आ रहे हो कि कभी भी किसी में किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाए तो उसको किसी कपड़े से, मतलब वूलन ब्लैंकेट से दबा देना चाहिए, ठीक है। तो जितना मोटा कपड़ा लोगे उतना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो कवर विद द वूलन ब्लैंकेट, ठीक है, पॉलिथीन शीट से मत कवर कर देना,
बंदा नहीं भी जलना होगा वो जल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 करते हैं। 26 says which one is not produced by the process of fermentation? It is not produced है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, not produced, ठीक है। तो net not produced जो ऑप्शन उसका आंसर क्या होगा बेटा? that was milk, ठीक है। उसके ऑप्शंस थे योगर्ट, ठीक है, wine is prepared by fermentation, yogurt is prepared by fermentation, cheese is also prepared by fermentation, only milk was the correct answer for that. 26 27 dash is the first fully synthetic fiber, इनमें से कौन सी जो है, देखिए नायलॉन, इस पर आंसर पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी, फर्स्ट सिंथेटिक, ठीक है, और फर्स्ट सिंथेटिक है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर पे भी, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर। तो क्वेश्चन देख रहे हो, साउंड पे 2 क्वेश्चन थे, फाइबर वाले क्वेश्चन पे 2 हैं, ठीक है, लाइट में से 1 क्वेश्चन था। क्वेश्चन के पैटर्न देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वही चीजें पूछी गई, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया। वेरी गुड। क्लास अगर आपने ढंग से लगाई है तो आप लोगों को, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको इतने इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी बेस्ट टू यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है, दैट इज बेकेलाइट, ठीक है, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है ये, ठीक है। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द पाइप्स, ठीक है, जो आपके पाइप्स वगैरह यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वायर डालने के लिए। Polythene is a polythene, ठीक है। PET is also a polymer and bakelite is a also used for the making the handles of cookers, and पहले जो switches भी use होते थे, ठीक है। आगे देखिए, Terylene is a powerful form of which polyester monomer plastic, ये monomer is a repeating unit of polymers actually, तो option is the polyester, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, आपके फाइबर्स वाले टॉपिक पे, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इवन विद द सी? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लो है, ठीक है, दैट इज योर सिल्वर, ठीक है। मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है बट स्लोली, ठीक है, और आपके गोल्ड एंड सिल्वर तो नोबल मेटल्स हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद इवन स्टीम, ठीक है। चलिए, the food cans are coated with tin and not with zinc because फूड कैंस को जो है वो टिन में क्या आता है, जिंक में। ऑब्वियसली सी बात है, फूड विल रिएक्ट विद द मेटल, दैट्स व्हाई आप लोग वो मेटल चूज करोगे जो लेस रिएक्टिव होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्चुअली एक बार हम लोगों ने सैम्पल पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है। चलिए नेक्स्ट, इन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सल्फर इज अ सल्फर इज अ नॉन मेटल, सबको पता है, क्लास में मैंने एक बार बताया भी था। नॉन मेटल when react with oxygen it forms oxide, non metallic oxide, ठीक है। non metallic oxide actually acidic in nature, they are acidic in nature, ठीक है। so answer is acidic, और metal होता तो basic in nature होता, ठीक है। चलिए, what is the property that makes metal shine? what are the properties? ठीक है, that is your lustrous, shine means lustrous, ठीक है। 33 के बाद हम करते हैं 34, the efficiency of fuel is expressed under density, हो नहीं सकता, कैलोरी वैल्यू का मतलब होता है बेटा हीट वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। चलिए, आंसर इज 34 का आंसर दिया, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज, एक्सक्यूज मी बच्चों, थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लू, वेरी गुड, ब्लू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्लेम, देखिए फ्लेम पर भी क्वेश्चन 2 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू कंट्रोल फायर, ठीक है। इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई विल इंक्रीज द फायर, ठीक है। इंक्रीज फ्यूल सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज द फायर, रिड्यूस द हीट सप्लाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट इज 37। 37 का आंसर आपका होगा, क्वेश्चन देख, creation of wildlife reserves and endorsements of laws or conservation measures that promote increased preservation of species. एक्सप्लॉइटेशन तो हो नहीं सकता, एक्सप्लॉइटेशन के लिए थोड़े ना हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, ये लॉज बना रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है बेटा, समझ गए, गुड। चलिए, जिसके लिए बायोस्फेयर्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, दीज आर यूज्ड। That is the process of conservation of fertile land into desert is it called as desertification, as word suggests the answer, ठीक है, desertification, deserts में change करना fertile land को, that is called as desertification। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 39। The species found exclusively in particular area called, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलना उस स्पीशीज को, उनको क्या कहा जाता है बेटा, एंडेमिक। ठीक है, एंडेंजर्ड कौन सी होती हैं, जिनके नंबर बिल्कुल खत्म होने वाला है, माइग्रेटिंग जो इधर से उधर जाने, और एक्सटिंक्ट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, माइग्रेटिंग जो चेंज करती हैं अपनी पोजीशन को एंड सीजन अकॉर्डिंग टू द सीजन। चलिए नेक्स्ट इज द 48th 48th क्वेश्चन इज, चलिए ओके 40th करते हैं, वो एकदम से स्लाइड चेंज हो गए। ठीक है, 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ओजोन लेयर, जेट प्लेन्स, मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आंसर इज ओजोन लेयर। ठीक है, एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका 41 का आंसर क्या होगा बेटा, ओजोन लेयर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42। Which organelle in the cell it's called as the power house of the cell? ठीक है, it is nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria and Golgi apparatus। अरे very easy, it is mitochondria is the correct answer 43 का। ठीक है, आगे 42 का सॉरी, ठीक है 43 देखिए बेटा, 43 43 which of the following instruments can be used to observe the cells। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, बैरोमीटर इज फॉर द प्रेशर, माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर, पेरिस्कोप एंड टेलीस्कोप इज नॉट, पेरिस्कोप इज फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जो कॉर्नर वगैरह के लिए। ठीक है, और टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44th, which of the following scientists discover cells in cork slices? cork slices में किसने किया था बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द आंसर। ठीक है, चलिए 44 के बाद 45th की बात करते हैं। 45th का आंसर होगा, which of the following statement is incorrect about the endoplasmic reticulum? It involve in lipid synthesis। लिपिड होता है फैट सिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इट इन्वॉल्व इन राइबोसोम्स synthesis, बिल्कुल सही है, राइबोसोम्स। ठीक है, and it is a post office of the cell। post office of the cell is wrong because post office of the cell क्या है, Golgi apparatus। ठीक है, ट्रांसफर के लिए, ठीक है, पैकेट्स में। ठीक है, चले डिटेल में पढ़ भी चुके हैं हम लोग। इट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफाई द केमिकल्स, बिल्कुल सही है वाला 45 का डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज 45 के बाद 46। ठीक है, which is of the following is not a function of lysosomes। ठीक है, not the functions। ठीक है, breaking down of the food particles। ठीक है, perform sorry protection against pathogens, digest worn out cells। देखिए फोटोसिंथेसिस को ये परफॉर्म नहीं करता है, दिस इज द फंक्शन फॉर लाइफ, मतलब जो नॉट अ, ठीक है, क्योंकि देखिए वॉर्न आउट सेल्स को करेगा तो पैथोजन से ऑटोमेटिकली बचाएगा। ठीक है, लाइसोसोम्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, among the following which cell can be seen unaided? unaided, ठीक है, hen cell, रेड ब्लड सेल, स्पर्म सेल एंड नर्व सेल। ठीक है, इन तीनों को नहीं देख सकते, हेंस सेल को हम लोग देख सकते हैं। ठीक
है, बाय अनएडेड मतलब विदाउट एनी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड व्हाटएवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 48, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट पूछना बताना है। सेल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, देखिए 48 का बताइएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद सी क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस एंड सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल, ठीक है। आपका करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, ठीक है। तो करेक्ट आपका 48 का क्या होगा बेटा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नो, ठीक है, फर्स्ट, सॉरी ये ऑप्शन थोड़े उधर उधर हो गए हैं, ठीक है। इसका होगा क्या बेटा, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। पोजीशन चेंज हो गया, ओके, समझ गए सारे। चलिए 48 के बाद हम बात करते हैं 49 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज ऑलवेज सेल वॉल, ठीक है, और ये ओनली ओनली प्रेजेंट होती है बेटा प्लांट सेल में, ठीक है। कंबस्शन ऑफ सब्सटेंस रिलीजेस हीट एंड लाइट, ठीक है। हीट एंड लाइट जो है कंबस्शन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड दिस एक्चुअली क्वेश्चन पेपर इज सॉल्व आंसर की फॉर द साइंस, ठीक है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।